کچھ سال پہلے سینماٹوگرافر ٹم ماونی، جو کہ اپنی فلم سیریز پیٹرنز آف ایویڈنس کے خالق، مصنف اور میزبان ہیں، نے ہم سے رون اور اس کے کام پر ایک سلسلہ وار انٹرویوز کیے تھے۔ اگرچہ ٹم کی موجودہ فلم خروج کے بارے میں تھی، وہ رون وائٹ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون تھے اور انہیں کس چیز نے متحرک کیا۔ ایک ماہر انٹرویو لینے والے کے طور پر اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اہم معلومات اور نقطہ نظر سامنے لے آئے جو انٹرویو دینے والا شاید اتنے اہم نہ سمجھے کہ ذکر کرے۔ میں اس بات کی اجازت دی کہ میں ہمارے انٹرویوز کی وہ فوٹیج استعمال کروں جو اس نے اپنی فلموں میں شامل نہیں کی تھی، اور اس حصے میں وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ رون وائٹ کو عہد کے صندوق کی تلاش پر کس چیز نے آمادہ کیا۔ یہ واقعی جب آپ اس بارے میں سوچتے ہیں، ترکی اور بحرین جانا اور قاہرہ اور مصر اور سعودی عرب کے مقامات اور اسرائیل اور یروشلم، یہ کتنے سالوں سے چل رہا تھا؟ ٹھیک ہے، رون کے لیے اس نے 77 میں سفر کرنا شروع کیا اور پھر اس کی موت 99 میں ہوئی، اور وہ پورے وقت یعنی 22 سال سفر کر رہا تھا۔ 22 تو 22 سال تک وہ باہر رہا جی ہاں، اور وہ خرچ کر رہا تھا، سب کچھ اسے کرنا پڑا۔ پھر اور میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ تنقیدی تھے کیونکہ وہ ماہر آثار قدیمہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں، میرا مطلب ہے، کیا وہ کسی کو اس بات پر آمادہ نہیں کر رہا تھا کہ وہ ساتھ جا کر اسے چیک کرے؟ آئیے اس کے لیے مشکل تھا۔ یہ اس کے لیے مشکل تھا۔ ہر ایک وقت میں کسی کو دلچسپی ہوگی، لیکن اکثر نہیں۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے؟ میں نہیں جانتا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میں تو تھا جیسے ہی میں نے پہلی بار اس کے بارے میں سنا، لیکن اس میں بہت پیسہ لگتا تھا۔ زیادہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو فوراً سب کچھ چھوڑ کر اس طرح سفر کرنے کے لیے پیسے رکھتے ہوں، اور انہیں اس پر یقین بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ واقعی اس میں شامل ہو سکے۔ ایسے لوگ ڈھونڈنا مشکل تھا، اسی لیے اس نے مجھ سے شادی کی درخواست کی تھی۔ اس نے کہا، مجھے مدد چاہیے اور میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ افسوسناک تھا۔ ہاں، تو وہ ایک اکیلا والد تھا، 3 بچوں کی پرورش کر رہا تھا، اور پھر اپنے شادی کر لی، ہاں، مدد دی گئی۔ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا، انٹرنل ریونیو والے آ کر سب کچھ لے گئے۔ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو یہ ایک عجیب کہانی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ پھر یروشلم بھی گیا تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ ایک چیلنج یہ بھی تھا، میرا مطلب ہے، نو کی کشتی کے بارے میں دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ اس کی تلاش میں تھا، کیونکہ وہ اس 1960 کی تشکیل کے پیچھے جا رہا تھا جو ملی تھی، اور پھر ہم نے بحیرہ احمر کی عبور کی تلاش شروع کی، جی ہاں، اور پھر وہ اس سے بھی بڑی ممکنہ چیز کی تلاش میں نکل گیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ 1978 میں اپنے بالکل پہلے سفر پر رتھ کے پرزے تلاش کرنے کے لیے جانا تھا۔ وہ نیویبا بیچ پر تھے اور وہ لوگ تیر رہے تھے، اور اس ایک موقع پر ان کے پاس اپنا سامان نہیں تھا۔ وہ زیادہ گہرائی میں غوطہ نہیں لگا رہے تھے، وہ بس سطح پر تیر رہا تھا، اور اس کے پاؤں بہت زیادہ دھوپ سے جل گئے اور وہ چل نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ اٹھا تو وہ اپنے فلی پرس دوبارہ نہیں پہن سکتا، تو وہ واپس یروشلم چلے گئے، کیونکہ اس وقت 78 میں اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہوتا، ایپکس ٹکٹ، تو آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے تھے اور کچھ اور نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہیں وہاں جانا پڑا اور گھر واپسی کی پرواز کا وقت ہونے تک انتظار کرنا پڑا۔ وہ پہلی بار یروشلم پہنچے تھے اور سب کچھ دیکھتے ہوئے گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں گھوم رہے تھے، اور رون ایک ایسے آدمی سے بات کر رہا تھا جس کی شناخت اس نے کبھی ظاہر نہیں کی۔
मैं बता दूंगा, क्योंकि अब वो और रोन दोनों ही फौत हो चुके हैं। वो एक आदमी के साथ चल रहा था जिसका नाम कर्नल डूबी था, जो उस वक्त गार्डन टॉम चला रहे थे, और रूम को लगा कि वो यहूदी है क्योंकि वो सांवला था, और अब जानते हैं इसकी नात नुमाया थी और सब कुछ। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो यहूदी नहीं था, शायद वो कुछ और था। खैर, वो बात कर रहे थे, वो चल रहे थे, और रूनी और डैनी उनके करीब ही थे। वो चट्टान के किनारे बातें करते जा रहे थे जब रून ने हाथ बढ़ाकर कहा, ये यिर्मयाह का गार है और अहद का संदूक इसी में है। रून ने कहा, ये पहली बार था कि मैंने अहद के संदूक के बारे में सोचा भी नहीं था। उसे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, तो ये सब ऐसे ही हुआ था। और कर्नल डूबी ने कहा, ओ, ये तो कमाल है, हमें तुम्हें वापस आना होगा और इस पर काम करना होगा। हम तुम्हें रहने की जगह देंगे, खाना खिलाएंगे और तुम्हारा कपड़े भी धो देंगे। तो इसने कहा, अच्छा, मुझे इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि वो पहले ही, अब जानते हैं, वो रेड सी और कोसीना पर अपना काम मुकम्मल करने में लगा हुआ था। तो इसी तरह यह सब शुरू हुआ था। और अब तो क्या इसने इस बारे में सोचा? जाहिर है इसने सोचा। फिर वो वापस आया और उसने क्या किया? क्या इसने बेलचा उठाया? और वो कैसे हुआ? क्या उसने इस्राएली हुकूमत से बात की और इजाज़त ली? नहीं, वो घर आया और उसने इस बारे में दुआ की, लेकिन उसने मुताला करना शुरू कर दिया। और जब उसने इसका मुताला किया, तो अब जानते हैं अहद का संदूक कहाँ गया। अहद का संदूक वहाँ क्यों होता, और वो जगह यिर्मयाह की गार क्यों कहलाती है, जबकि सब लोग कहते हैं कि वो दूसरी तरफ की गार है। अब जानते हैं, चट्टान के नीचे की तरफ। तो इसमें मुताला करना शुरू कर दिया, और जब उसने ये फैसला किया कि वो गायब हो गया है, जब उसे ये मालूमात मिली कि वो गायब हो गया है, तकरीबन बाबुल के मुहासरे के वक्त, जब उन्होंने शहर के गिर्द एक मुहासरे की दीवार बनाई, तो इसने सोचा, अच्छा, इसने अंदाज़ा लगाया कि गालिबन इसी वक्त ये किसी जगह छुपा दिया गया होगा। लेकिन इससे ये मालूम नहीं था कि कहा। जब उसने कहा कि ये यिर्मयाह की गार है और अहद का संदूक वही है, तो वो कहा, अब जानते हैं कहा। और उसने वहाँ एक सुरंग खोदने और उसे तलाश करने में काफी वक्त गुजारा था। और ये था 3 साल और 6 माह पहले उसने चट्टान के नीचे सर के बिल रास्ता बनाया था। तो वो वापस आया, सोचा और फिर लौटने का फैसला किया। नाजरत। और फिर इसने क्या हुआ? क्या इसने फिर हुक्काम से बात की? बस उसने खोदना शुरू कर दिया। खैर, वो वापस आया, और जैसा कि आप जानते हैं, गार्डन टॉम वालों ने कहा कि वो खुदाई कर सकता है, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक जिम्मेदार मुकर्रर किया। मेरा ख्याल है कि उन्हें यरूशलेम के हुक्काम से इजाज़त लेना पड़ी, और उन्होंने इस पर निगरानी के लिए एक माहिर आसार कदीमा मुकर्रर किया, लेकिन वो माहिर आसार कदीमा ज़्यादा कुछ नहीं करता था। तो रूनी और डैनी बस खुदाई करते रहे, और जब वो फारिग होते तो अपनी दरियाफ्तें जो कुछ भी होता जाकर रिपोर्ट कर देते, और बस यही था। वो बस खुदाई करता रहता था, और वो क्या तलाश कर रहा था? उसे खुद भी मालूम नहीं था। उसने कहा कि जब वो वहाँ पहुँचा और इर्द-गिर्द देखा, तो सबसे पहली चीज़ जो उसने देखी वो ये कटे हुए हिस्से अताक थे जो चट्टान की दीवार में बने हुए थे। ऐसे 3 थे, वो इस तरह कुछ फासले पर बने हुए थे।
और उसके जहन में ख्याल आया कि ये बिल्कुल वैसे ही कटे हुए हिस्से अताक लगते हैं जैसे हम देखते हैं, और दूसरी जगहों पर भी जहां वो जानते थे कि बादशाह और दूसरे लोग पत्थर की तख्तियां लगाते थे जिन पर पैगामात लिखे होते थे। तो इसने कहा, यह ज़रूर किसी पैगाम के लिए है। और फिर आखिरकार वो इस यकीन पर पहुंचा कि यही वो जगह है जहां मसलूब किया गया था, और ये वही जगह है। मेरा मतलब है, वो पूरी तरह यकीन से नहीं कह सकता था, लेकिन अब उसे सब कुछ समझ आने लगा था। उसने ये यकीन कर लिया कि ये जो ताक बने हुए हैं, ये वो जगहें हैं जहां वो तख्तियां रखी जाती थी जो पिलातास ने बनवाई थी, जिन पर लिखा था नासरुत का यसू, यहूदियों का बादशाह, 3 मुख्तलिफ ज़बानों में। तो उसने इर्द गिर्द देखना शुरू किया कि कहीं सलीब के गड़े या कुछ और तो नहीं है। क्या ये वही जगह हो सकती है जहां मसलूब किया गया था? लेकिन फिर उसने आखिरकार ये जाना कि यह सब मलबा था जो यरूशलेम की कई तबाहियों के बाद जमा हुआ था। जब उसने इस मिट्टी में खुदाई शुरू की तो उसे हर तरह के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और चराग और इस तरह की चीज़ें मिलें, और उसने इनमें से ज़्यादातर वापस कर दिए। हमारे पास कुछ छोटे टुकड़े अब भी मौजूद हैं, लेकिन जब भी यरूशलेम तबाह हुआ, और यह तकरीबन 10 से ज़्यादा बार तबाह हो चुका है, तो सब कुछ ज़मीन बोस हो गया और सिर्फ मलबा रह गया। तो जब वो नीचे जाता गया, तभी इसे ये मिला। ऐसे शवाहिद जो इसके ख्याल में मज़ीद गहराई से तहक़ीक़ के काबिल थे। आमोस 3:7 में लिखा है कि खुदावंद तब तक कुछ नहीं करता जब तक वो अपने खादमों और नबियों पर अपने भेद जाहिर ना कर दे। तो हम तवक्को कर सकते हैं कि खुदा पुराने अहद नामे में कोई अहम बात, जैसे यसू का खून रहमगाह पर जाना, इसकी पेश गोई करेगा। मेरा मतलब है, दोस्तों, यही निजात के मंसूबे का दिल और जान है। और मुझे हैरत होती अगर उसकी पेशगोई पुराने अहद नामे में ना की गई होती। तो दानिएल 9:24 की आखिरी हिस्सा में लिखा है, और सबसे मुक़द्दस को मसह करना। अब लोगों ने ये समझ लिया है कि ये मसीह के बपतिस्मा और दरियाए यरदन पर कबूतर की शक्ल में रूह अल कुद्स के नाजिल होने के बारे में है। ताहम मसीह सबसे मुक़द्दस नहीं है। खुदा की ज़ात में 3 हस्तियाँ हैं। वो 3 में से एक हैं, लेकिन वो सबसे मुक़द्दस नहीं है। लेकिन अगर आप सहीफ़े पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि सबसे मुक़द्दस का लक़ब, ये उन्वान, अहद के संदूक की रहमतगाह के लिए है। सबसे मुक़द्दस जगह को ये नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो वही है। और बहरहाल ये सबसे मुक़द्दस रहमतगाह को मसह किया जाना था। अब क्या इसका मतलब ये है कि कोई वहाँ तिलमस लगाएगा? पुराने अहद नामे के ज़माने में जितना भी तिलमस इस्तेमाल हुआ, वो सब यसू के खून की नुमाइंदगी करता था। तिलमस में खुद कोई फजीलत नहीं, लेकिन जिस चीज़ की ये नुमाइंदगी करता है, यानी मसीह के खून में, वो फजीलत है। तो बहुत सादा अल्फाज में, दोस्तों, दानिएल 9:24 कहता है कि मसीह का खून रहमतगाह पर चढ़ाया जाना था ताकि कुर्बानी का खात्मा हो, गुनाह का खात्मा हो। बहरहाल अगली बात यह है कि हम बाइबल में देखते हैं कि नए अहद नामे में हमेशा ये दर्ज है कि पुराने अहद नामे की ये निबुत वाकई पूरी हुई। वो पूरी हो चुकी थीं।
तो 1 यूहन्ना बाब 5 आयत 7, 8 और 9 में। आयत 7 में लिखा है, आसमान पर 3 हैं जो गवाही देते या रिकॉर्ड रखते हैं। हमारी जिंदगियों का रिकॉर्ड वहाँ मौजूद है। ये भी लिखा है कि हमारे सर के बाल तक गिने हुए हैं। दाऊद ने कहा, मेरी सारी आंसू, अपने मेरे सारे आंसू एक बोतल में जमा किए हैं। तो बहरहाल आसमान पर 3 हैं जो रिकॉर्ड रखते हैं, खुदा बाप, कलाम जिसे हम मसीह मानते हैं, और रूह अल कुद्स आपाक रूह। और लिखा है कि ये तीनों एक हैं। आयत 8 में लिखा है कि जमीन पर 3 हैं जो गवाही देते हैं, रूह, पानी और खून। अब जाहिर है पानी वो सीरम था जो खून का हिस्सा है। खून वो प्लेटलेट्स जो मौत के वक्त अलग हो जाते हैं। तो बहरहाल फिर आयत 9 जो बहुत अहम है, इसमें लिखा है, अगर तुम इंसानों की गवाही कबूल करते हो तो खुदा की गवाही इससे बड़ी है, और ये खुदा की अपने बेटे की गवाही है, रूह, पानी और खून। अब पहला तीमोतास बाब 2 आयत 5 और आयत 6, इसमें लिखा है, एक ही खुदा है और खुदा और इंसान के दरमियान एक ही सिफारिशी है, और वो है इंसान मसीह यसू, जिसने अपने आप को दे दिया हम सब के लिए फिदया के तौर पर, जिसकी गवाही वक्त पर दी जाएगी। ठीक है, उस वक्त शायद किसी को ये एहसास नहीं था कि मसीह का खून रहम की कुर्सी पर गिरा है। वो इल्हामी कलाम कर रहे थे, शायद वो जानते थे या नहीं। कुछ नबी हैरान थे कि वो क्या कह रहे हैं जब खुदा उनसे कलाम करता था। ये थोड़ा उलझन भरा होता, जैसे जब मेरे मुंह से निकला कि वो यर्मिया की गार है और अहद का संदूक वही है। मैं नबी होने का दावा नहीं करता, लेकिन ऐसे तजुर्बात वाकई होश उड़ा देते हैं, और नबियों ने भी ऐसी बातें कहीं जो शायद वो खुद नहीं जानते थे। इस बारे में ज़ाती तौर पर तो बहरहाल इससे हमें पता चलता है कि मसीह का खून रहमत की कुर्सी पर चढ़ाया जाना था। ये हमें बताता है कि ये वाक़या पेश आया और कि खुदा इस गवाही या इस सबूत को, यानी रूह, पानी और खून को अपने वक्त पर इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, आप और मैं इसी दौर में जी रहे हैं। खुदा एक ऐसी कौम तैयार कर रहा है जो इससे रूबरू मिल सके और इस तजुर्बे में जिंदा रह सके, और उसी लिए वो अपने बेटे के किए हुए काम की ये गवाही सामने ला रहा है। अब फिर जब मसीह ने हमारे लिए जान दी, तो ये वो है जो उन्होंने हासिल किया। हम सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम हो गए हैं, और लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, इसलिए मौत सब इंसानों पर आ गई क्योंकि सब ने गुनाह किया है। आप, मैं और वो सब लोग जो आदम और हव्वा के इस फल को खाने के बाद इस जमीन पर आए, एक ऐसी मौत की सजा के तहत हैं जिससे बचना नामुमकिन है। यहाँ तक कि मसीह ने हमारे लिए जान दी। यकीनन बाइबल हमें बताती है कि ये सब जमीन की बुनियाद रखने से पहले ही तय हो चुका था। तो बहरहाल बाइबल में हमें एक पेशगोई मिलती है कि मसीह के अमल के नतीजे में क्या होगा, और ये सात 26-19 में है। इसमें लिखा है, तेरे मुर्दे जिंदा होंगे, सब मिलकर मेरे मुर्दा जिस्म के साथ वो उठ खड़े होंगे। कहा गया है, जागो और गाओ, ये वो लोगो जो खाक में सोए हुए हो, क्योंकि तुम्हारी उस जड़ी बूटियों की ओस की मानिंद होगी, और ज़मीन अपने मर्दों को बाहर निकाल देगी।
नए अहद नामे में उसकी तकमील का जिक्र है और ये मत्ती 27 आयत 50 से 53 में है। इसमें लिखा है कि जब इसने फिर से पुकारा और ये मसीह के बारे में कहा जा रहा है तो कहा गया कि वो वफात पा गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, जमीन लरस गई, चट्टानें फट गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से मुक़द्दसीन जो सोए हुए थे उठ खड़े हुए। जब वो उठे तो वो भी उठे और मुक़द्दस शहर यानी यरूशलेम में गए और बहुत लोगों ने उन्हें देखा। और फिर अफिसियों में, मुझे सही जगह याद नहीं, लेकिन ये आयत कहीं अफिसियों में है। इसमें लिखा है कि जब वो बुलंदी पर चढ़ा तो उसने कैदियों को कैद कर लिया और लोगों को तोहफे दिए। जब यूहन्ना ने आसमान के अपने रुया देखे तो वहाँ 4 और 20 बुजुर्ग यानी 24 बुजुर्ग खुदा के तख्त के गिर्द मौजूद थे और ऐसा लगता है कि ये वही लोग थे जो मसीह के कब्र से निकलने पर जिंदा किए गए और अब वहाँ। अब जानते हैं जो कुछ भी वो 4 और 20 बुजुर्ग करने के लिए मुकर्रर हैं वही कर रहे। तो खैर दोस्तों, जब हम जन्नत में जाएंगे तो हम उन 4 और 20 बुजुर्गों में से नहीं होंगे, लेकिन वहाँ करने के लिए और भी बहुत सी शानदार चीज़ें हैं। अब जब यसू का खून रहम की कुर्सी को छू गया तो वो लोग जो शैतान के जायज़ कैदी थे आज़ाद कर दिए गए। जायज़ कैदी बाइबल पूछती है, मेरा ख्याल है ये यर्मिया में है, कहती है क्या ताकतवर से शिकार छीना जा सकता है और क्या जायज़ कैदी को आज़ाद किया जा सकता है। और ये कहता है शिकार ताकतवर से छीना जाएगा और जायज़ कैदी को आज़ाद किया जाएगा। और फिर पूरी बाइबल में सबसे खूबसूरत वादों में से एक, और मैं इससे लड़ूंगा जो तुझसे लड़ता है और तेरे बच्चों को बचाऊंगा। ठीक है दोस्तों, हमें कीमत देकर खरीदा गया है। नजात पाने के लिए हमें सिर्फ ये करना है कि बाप के पास बेटे के नाम और खून के वसीले से जाएं और मुआफ़ी और बहाली मांगें। और अगर आप चाहते हैं कि यह तजुर्बा और भी ज़्यादा शानदार हो और कहीं कम मुश्किल हो, अल्लाह से दुआ करें कि वो आपकी मदद करे कि आप सब कुछ सीख सकें, याद रख सकें और आजिज़ी और मोहब्बत के साथ वो सब कुछ दूसरों तक पहुंचा सकें जो वो चाहता है कि आप पहुंचाएं। क्योंकि वो हमें बताता है कि तुम्हें देना आना चाहिए। अपने अंदर जो उम्मीद है इसकी वजह उन लोगों को बताओ जो तुमसे पूछें। तो अगर हम अपनी बाइबल दुआ के साथ पढ़ें, अगर हम अल्लाह से मदद मांगें जैसा कि मैंने अभी बयान किया यसू के नाम और खून के वसीले से, तो वो ज़रूर मदद करेगा, इसी तरह हमारी मदद करेगा। और दोस्तों, जब हम अपनी फ़िक्र करना छोड़ देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करे ताकि वो इसे पा सकें और नजात हासिल कर सकें, तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है जब आप अंदर की बजाय बाहर देखना शुरू करते हैं। अब हम खुद गर्जी छोड़कर दूसरों के लिए दुआ करते हैं क्योंकि अल्लाह हमारी ज़रूरतें मांगने से पहले ही जानता है। शुक्रिया।